Hello students, today I am going to discuss with you the poem The Voice of the Rain. You know that your test is going to take place, your unit test is going to take place in the month of the August. This poem I am just teaching you as a revision work. So students, now I will tell you the summary of the poem. The poet asked the rain who it was, and surprisingly, it gave a reply. The rain said that it is the poem of the earth. It describes itself as eternal. It rises from the land and the sea and goes upwards towards the sky in the changed form of clouds, but yet it remains the same. It comes down as rain and rejuvenates lifeless things like the seeds and even cleans the dust covered things. Since this process is a continuous one, it constantly wanders about and gives back life to its place of origin, regardless whether it is given recognition or not. So student, because I have already explained this poem with all the stanzas were well explained in Hindi also. Now today I have explained it in English, and now I will ask a few questions to you, and there are some lines. The stanza is, and who are thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain. Now here the question is for you, who is I? In the first line, the earth, the poet, the rain, a stranger. So now the poet is asking actually, ठीक है ना? The who are thou? Said I, here I is who? The poet. Who gave the answer? Who gave the answer? So the rain, the earth, the poet, a stranger, the rain. Why does the rain call itself the poem of the earth? तो पोएम जो है अपने आप को द रेन जो है अपने आप को पोएम ऑफ द अर्थ क्यों कहती है? इट इज़ इटर्नल, इट लीव्स मेमोरीज, इट कॉजेज म्यूजिक, इट इज़ रिदमिक लाइक द रेन, बिकॉज इट इज़ रिदमिक लाइक द रेन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टेक्निक हैज़ द पोएट यूज्ड इन द थर्ड लाइन? थर्ड लाइन में क्या यूज़ हुआ है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. तो क्या यूज़ हुआ है? एलिट्रेशन, पन, सिम्बली, पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. इट मीन्स कि रेन इज स्पीकिंग एंड इट इज सेइंग दैट कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. That means कि non-living object is being treated like a human being. So it means it is personification. Okay, now next is personification. You know it very well. When a non-living object or a nature and a nature of object is being treated like a human being, it is called personification. So now next stanza, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. Now explain upward to heaven. So your
Options are given. Upward to heaven means prayer, go up to heaven. The sea looks upwards. The sea water evaporates and moves upwards. The rain is heaven blessing to us. तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, द अपवर्ड टू हेवन मीन्स होगा द सी वाटर इवेपरेट्स एंड मूव्स अपवर्ड्स. तो नाउ the next question is for you. How is it changed here the same? The first option is the clouds and rain are another form of the vapor. Second, it is no more visible. The clouds keep changing their shape. The clouds keep changing their course. तो बच्चों हाउ इज इट चेंज्ड हियर द सेम. तो ये इसका मतलब हुआ द क्लाउड्स एंड रेन आर अनदर फॉर्म ऑफ द वेपर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द रेन डिसेंड टुवर्ड्स हेवन? इट स्टेज अप इन द एयर टुवर्ड्स द अर्थ. इट चेंज्ड इनटू वेपर. तो वेयर डज द रेन डिसेंड, वो कहाँ उतरती है? टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की ओर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. व्हाट डज द रेन अचीव बाय डिसेंडिंग? तो रेन को क्या मिलता है, क्या अचीवमेंट होती है उसकी? नीचे आकर क्या? इट रिजुवेनेट्स लाइफ ऑन द अर्थ. इट बिकम्स फ्री फ्लोइंग. इट लीव्स इट्स होम द क्लाउड. इट कॉन्कर्स द सी. तो प्यारे बच्चों, तो इसका जो मतलब है कि व्हाट डज द रेन अचीव बाय डिसेंडिंग, वो डिसेंड में क्या करती है? इट रिजुवेनेट्स लाइफ ऑन दी अर्थ. तो लाइफ जो अर्थ की है उसे रिजुवेनेट कर देती है, उसे और एनर्जाइज कर देती है कि चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है. मैंने ये सारी बातें आपको जो है जब मैंने रेन पोएम को जब एक्सप्लेन किया था तो बताई थी. ये केवल रिवीजन टेस्ट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ओनली फॉर रिवीजन टेस्ट. ओके, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. तो नाउ आई विल टेल यू अगेन द सेम लाइन. एंड फॉर एवर by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. So who is I? The poet, the earth, the sea, the rain? So your answer is the rain. Okay students, so now the next question is for you. I hope so. So in this what is its origin? What is its origin? तो इसका origin क्या है? The clouds, the heaven, the earth, the mountains. What is the origin? What is its origin? The earth, heaven, the mountains, the clouds. तो क्या है ओरिजिन है रेन का? एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. तो मैंने पहले ही बता रखा है इन द प्रीवियस वीडियो. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट ऑल कि जब मैंने इसकी समरी पढ़ी थी, द पोएट आस्क्ड द रेन हु इट वाज एंड सरप्राइजली इट गेव अ रिप्लाई. द रेन सेड दैट इट इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ. It describes itself as eternal. It rises from the land and the sea and goes upward toward the sky in the changed form of the clouds, but yet it remains the same. तो ये मैंने बताया, it rises from the land. तो ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दी हुई हैं आपको, the clouds, heaven, the earth, the mountains, the earth आएगा यहाँ पे, ठीक है ना. नेक्स्ट होगा how does the speaker gives life to its origin. तो नाउ हाउ डज स्पीकर गिव लाइफ टू इट्स ओरिजिन.
water, cleanliness, life and beauty, the sea, spirituality. तो how does the speaker give life to its origin? तो इसका ये अपने खुद को कैसे ओरिजिनेट करती, कैसे अपने खुद को अपने आप को जन्म देती है, तो कैसे देती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखो, वाटर के द्वारा, क्लीनलीनेस एंड लाइफ एंड ब्यूटी को जनरेट करके, और द सी के रूप में, ये स्पिरिचुअलिटी। तो क्या किस तरीके से ये जो है स्पीकर की लाइफ टू इट्स ओरिजिन, कैसे ये अपने आप को ओरिजिन करती है, कि आप ये लिखेंगे कि क्लीनलीनेस, लाइफ एंड ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब दिस एक्शन ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर का विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस एक्शन ऑफ द स्पीकर? ग्रेटफुल, ड्यूटी अबाइडिंग, सेल्फिश, केयरलेस। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब दिस एक्शन ऑफ द स्पीकर? ग्रेटफुल, ड्यूटी अबाइडिंग, सेल्फिश, केयरलेस। कौन सा वर्ड है जो स्पीकर के एक्शन को बताता है? कि ड्यूटी अबाइडिंग, ठीक है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूटी विद लव रिटर्न्स। ओके, तो यहाँ पर बच्चों इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैं लास्ट लाइन जो है आपकी पोएम की वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। व्हाट डज इट्स रेफर टू? द सॉन्ग, द सी, द रेन, डे एंड नाइट। तो ये किसको दिखा रहा है? फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। तो व्हाट डज इट्स रेफर्स टू? इट्स जो है यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, क्या बता रहा है? तो ये जो है यहाँ पर सॉन्ग को बता रहा है। व्हाट हैज़ इट बीन कंपेयर्ड विद? किससे इसकी तुलना की गई है? द एवर। तो फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। व्हाट डज इट्स रेफर टू? तो ये किसके लिए रेफर हो रहा है? तो ये जो है दी सॉन्ग, दी सी, दी रेन और डे एंड नाइट। दी रेन, ये दी रेन के लिए हो रहा है। यहाँ पे इट जो शब्द आया है किसके लिए हो रहा है? ये रेन के लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट हैज़ इट बीन कंपेयर्ड विद? ये इसकी तुलना किसी की गई है? द एवर गिविंग हेवन, सेकंड अ सॉन्ग, द अर्थ और फोर्थ गॉड। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सॉन्ग। और सॉन्ग से इसकी तुलना की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अच्छा, तो नाउ इट लव्स फॉलिंग ऑन द अर्थ। तो नाउ एक्सप्लेन रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। तो ये क्या, ये जो रेग्ड है और अनरेग्ड, ये ड्यूली विद लव रिटर्न्स, इसको समझाइए, इसको एक्सप्लेन करो। इट लव्स falling on the earth, it enjoys the wandering in the sky, it contributes to its origin affectionately and selflessly. तो it wreaks havoc on the earth। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, it contributes to its origin affectionately and selflessly। तो this is the right answer। What two things have been compared? The song and the birthplace, the selfishness of the earth and the rain, the song and the rain, the sea and the earth. The song and the rain is compared. Okay students? तो students
इस तरीके से नाउ आई कंप्लीट दिस रिविजन session. I hope that all of you have understood. If you have any doubt, so you can directly call me. You can make a call to me, or you can send messages, and you can write in the comment box. Thank you very much for listening and watching this video.